My name is Mohammed Qasim Pasta. Basically, I'm assistant professor at Small Institute of Technology. So somehow we are there is a हमने एक छोटा सा जो है ग्रुप बनाया हुआ उसमें जिसको हम सी एस क्लिनिक कहते हैं एंड सी एस क्लिनिक का इस प्रेजेंटेशन से क्या लिंक है आई विल एक्सप्लेन एट द एंड दिस एज वेल. The basic idea of the CS clinic is actually provide a kind of a laboratory, CS laboratory. अब अगर हमें पता हो ना कि अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि जनरली मैंने देखा है बड़ी टेक्निकल डिस्कशन हो रही थी. मुझसे पहले भी टेक्निकल डिस्कशन है और मेरे बाद भी टेक्निकल डिस्कशन है. तो दिस इज नॉट अबाउट अ टेक्निकल डिस्कशन. वी विल लुक अबाउट के फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली हमें क्या प्रॉब्लम आते हैं और हम इसका क्या सोल्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं. So in case if someone is expecting we are going to learn a tool or something, then this is not the case with this presentation. इसमें हमारा ये गोल नहीं है. सो सी एस क्लिनिक के बारे में मैं आपको बता रहा था. तो उसमें हम बच्चों जो अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें कि ये 3D लैब बन जाती है जहाँ लोग स्टूडेंट आते हैं वो 3D लैब के कंपोनेंट्स पे भी काम करते हैं सब कुछ है, या पावर लैब बन जाती है या सोलर वाइंड लैब बन जाती है. बट सी एस स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ा सा एक होता है कि जी वो उनके लिए किस किस्म की लैब बनाई जाए. या तो इस बिकम अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च लैब्स बन जाती हैं, सो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट एक्सपीरियंस. So by identifying this problem, we actually introduce a CS clinic. Or CS clinic may we try to induct the students which are not in final year. That means they may be from first year, second year, or third year. So we provide them an opportunity so they can work on different projects beforehand. Uh, and so whenever they go to the final year project, तो उन्हें उनके पास एक अच्छा एक तरह से exposure हो जिससे वो अपने एक अच्छा final year project identify कर सकें. This is a longer debate about the final year project, so I'm not going into this. So this is a CS clinic, and then I will, at the end, I will connect कि इसका इस presentation से क्या था. So I think this slide is not very important for this platform or this open source foundation के platform पे. I think people are known about it. Okay, the world is open source. Okay, 90% of cloud servers are actually open source. 82% smartphones are actually open source. 62% embedded systems. ठीक है. So we are going towards the open source. ठीक है. हर चीज़ हमारी open source में आती available होती जा रही है. ठीक. Uh, Here is a point कि once we were thinking about open source versus Microsoft, I think might be the people are aware about it. कि Microsoft के अंदर भी open source जो है वो एक movement start हो गई है. Microsoft ने भी बहुत सारी चीज़ों को open source कर दिया है. डॉट नेट सी शार्प का जो कोर है यानी डॉट नेट कोर जो है वो आपके पास अब ओपन सोर्स अवेलेबल है. दैट्स मीन्स द पीपल आर राइटिंग compilers, the engines for C sharps and for other languages for .NET Core. So now a lot of projects are actually converting into the open source from into the C sharp or the .NET platform because now it's available open source. सो एक अब वो डायलेमा भी नहीं रहा है कि जी ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पे काम करना है तो ओपन सोर्स नहीं हो सकता. और ये एक जो डायलेमा इफ आई गो बैक टू 10 years or 15 or 20 years बैक तो हमें वो जो नज़र आता था. So if I just try to list down के open source these are the projects which are mostly used by the communities at the moment. A lot of application, I believe millions of applications are actually building on React, Android, Node.js, Dockers, and these are actually open source. We can go actually and we can go to the source of these projects. We can explore, we can contribute in these projects. So these projects are open source. So now this is no more kind of कि वो डाले में भी नहीं है कि someone cannot earn through the open source projects. ठीक है. So at the moment if we look at this the graph at the right side, तो current जो आपके पास GitHub की जो valuation है वो 56 million है. और इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 में ये वैल्यूएशन 100 मिलियन हो जाएगी. सो बाय दिस फैक्ट वी कैन एनालाइज और वी कैन आइडेंटिफाई कि दी ओपन सोर्स मूवमेंट कितनी जो है वो बढ़ती जाएगी. एंड लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. ठीक है. So this is a very important part. ठीक है. So open source is going to be one of the greatest force in future. ठीक है. And academia cannot be behind anything like this कि जी ओपन सोर्स का हमसे कोई लेना देना नहीं है and something like this. ठीक है. So open source is going to be a great force in future. What I see by looking at these stats. अगर हम पाकिस्तान ओपन सोर्स में देखते हैं तो वेरी गुड न्यूज़. अगर हम देखते हैं रिसेंटली जो गिटहब की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी
उसमें पाकिस्तान इज़ एक्चुअली इन द पार्ट ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज जो कि जिसमें ओपन सोर्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सो अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ कंट्रीज़ की बात करते हैं, सो वी आर एक्चुअली इन द सिक्स प्लेस, ठीक है। नाइजीरिया, हांगकॉन्ग, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, इजिप्ट के बाद पाकिस्तान इज़ एक्चुअली बिकमिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट country in terms of a contribution on GitHub. ठीक है, so this is actually showing that Pakistan is actually getting stronger in terms of open source softwares. ठीक है, yeah, ये could be a debate, हो सकती है, एक discussion है कि जी वो जो GitHub पे सब हैं वो open source हैं नहीं है, but this could be a very good indicator if you look at overall the the one more important point, if you look at the chart on the right side, so the contribution of education in open source is also increasing. Yep, developer are actually the leading this part, okay. But if you look at the yellow line, and yellow line is for 2020, so the contribution from education is also increasing, and we know a lot about it कि जितने भी अब जो बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे मशीन लर्निंग है या एआई के जो फ्रेमवर्क हैं, वो अब आपके पास अकेडमिया से आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स आपके पास आ रहे हैं, जिसको फिर बाद में मुख्तलिफ कंपनीज हैं या मुख्तलिफ लोग उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, उसको फिर कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसको बाकी चीज़ें कर सकते हैं। सो वन थिंग अनदर इंडिकेटिंग हेयर कि जी जो अकेडमिया का रोल भी, जो एजुकेशन का रोल, जो अकेडमिया यूनिवर्सिटीज़ का रोल है, वो भी ओपन सोर्स में बढ़ता जा रहा है। दिस क्रिएट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर हमारा जो अकेडमिया है, पाकिस्तान का जो अकेडमिया है, वो ओपन सोर्स को कैसे अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, वो इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और क्या हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं, अगर हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं तो किस किस्म का बेनिफिट ले रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ की बात करते हैं, या हम उन अर्ली डेज़ की बात करते हैं जब हमारे पास ये लिबर्टी थी कि हम चीज़ों को एक जो 30 रुपए की सीडी लेके इंस्टॉल कर लेते थे, तो उस लिबर्टी से हमने फ़ायदा क्या उठाया? उस लिबर्टी से हमने फ़ायदा ये उठाया कि हमने उन टूल्स को यूज़ करना तो शुरू कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम ज़रूर ये रही कि हम उन उन टूल्स जैसे टूल बिल्ड नहीं कर सके। एंड दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। हमारी आईटी इंडस्ट्री ग्रो तो बहुत कर रही है, दैट्स प्रीटी गुड, कंपैरेटिवली अदर सेक्टर्स हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बट क्या ये ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती थी? क्या हमारी आईटी इंडस्ट्री और कुछ कर सकती थी जो नहीं किया है? द काइंड ऑफ अ टैलेंट वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर IT industry. Take it. The reason we don't have much more opportunities. We are not building tools. We are not building platforms. We are not building the kind of the project the world should use. We are using those projects. ठीक है, we are kind of developing. हाँ, हम बहुत सारा काम हम दुनिया का यहाँ करके दे रहे हैं, but we are not the one who are developing those tools. ठीक है, so this is the gap we actually see. ठीक है, so if we talk about the open source, so yeah, we see कि हम academia open source से कहीं ना कहीं उसको utilize कर रहा है, but what else we can do in academia in terms of open source? सो अगर यूजुअली जब ओपन सोर्स एंड एकेडमिया की बात आती है, तो देयर आर टू डिस्कशन एक्चुअली गोज ऑन, ठीक है। और माई आई विल लाइक टू टेक द लिबर्टी टू से कि एक जर्नल डिस्कशन होती है दैट इज़ अबाउट ओपन सोर्स एंड रिसर्च, कि जी हम अपने रिसर्च को ओपन सोर्स करते हैं, ओपन सोर्स टूल्स यूज करना शुरू करते हैं, हम अपने डेटा को ओपन सोर्स करते हैं। यप, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। यप, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी जो रिसर्च है वो भी ओपन सोर्स हो जाए, हम ओपन सोर्स टूल्स को यूज़ कर रहे हों, उनकी मदद से हम अपनी रिसर्च को कैरी कर रहे हों। ओपन सोर्स फाउंडेशंस प्रोवाइड अ वेरी गुड फ्रेमवर्क in terms of how we can conduct the research by using the open source tools. But my presentation is not, or the talk I'm going to give you is not about the research in open source. This is a University of मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, MTU, मिशिगन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, और उनका ये एक पेज है opensource.mtu.edu. What they are doing, they are actually building open source software. Not only the open source software, they are actually building the open source hardware. They are building the hardware, they are publishing the design, they are making available their hardwares, etc., etc. Same in open source. There are all other efforts as well in terms of the data, making the data open source and making the pattern open source, etc. But I am just specifically targeting about these two things. So this is the kind of open source environment, the culture we need. How many universities do we know about in Pakistan जिनमें open source के इस तरह का काम हो रहा हो?
कि जहाँ हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटियों से जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप बन रहे हों वो हमारे इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही हो, दुनिया की इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही हो और इस तरह की चीज़ें हों। सो दिस इज़ नॉट अबाउट द ब्लेम गेम कि जी एकेडमिया ये नहीं कर रहा है कि हम कहाँ गैप है और हम उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो माई दिस प्रेजेंटेशन इज़ वैलिड फॉर इंडस्ट्री पीपल इज़ बिकॉज़ कि इंडस्ट्री क्रिएट्स द डिमांड जिसको एकेडमिया फुलफिल करता है। If I can reach to the people from industry, so I believe if I able to convince them to what I'm going to present in this presentation, then probably the word is going out and the academia will try to implement this stuff. If there are the people from academia, then I would like to request that they may think about what I'm going to present and they try to think about कि हमारे यहाँ कैसे ऐसे सेंटर्स बिल्ड हों, हमारे यहाँ कैसे ऐसे सॉफ्टवेयर बिल्ड हों, हमारे पास ओपन सोर्स कल्चर कैसे बिल्ड हो, जो कि ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म्स बनाए, ऐसे ओपन सोर्स टूल्स बनाए, ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाए जो कि दुनिया उसको इस्तेमाल करे, ठीक है, हमारी आईटी इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल करे। व्हाई डोंट वी हैव अ काइंड ऑफ अ रिएक्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम पाकिस्तान? Why don't we learn कि जी there is a tool or there is a framework built by Pakistani people are using by the entire world, ठीक है? So why we unable to achieve this thing, ठीक है? So where is the gap we have in this academia? So this is the objective of my talks, ठीक है? कि how Pakistan academia can help to build an active open source community. What is actually mean by the active, ठीक है? I'm going to discuss in the next slide. But the point is कि एक open source project GitHub पे डाल देना is not sufficient. So this is the problem. If you look at the challenges, तो जो challenges हमारे पास इस वक्त आते हैं वो क्या है कि जब we see the people are doing the open source efforts, but वो जो open source efforts हैं वो individual efforts हैं, ठीक है? कि कोई फैकल्टी है, कोई मे बी कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है, दे आर ट्राइंग टू डू बाय देमसेल्फ, ठीक है? वो अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं कि जी अच्छा जी आपको गिटहब इस्तेमाल करने आना चाहिए, आपको ये चीज़ इस्तेमाल करने आनी चाहिए, फाइन, ठीक है, ये टूल्स का आना ज़रूरी है। बट व्हाट वी आर विटनेसिंग, ठीक है, कि इन टूल्स के सिर्फ सीखने से हमारे पास ओपन सोर्स कल्चर बिल्ड नहीं हो रहा है। हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे कल्चर हैं, वो हम ओपन सोर्स फ्रेंडली नहीं हैं। वी डोंट नीड टू बी वरी अबाउट कि जी ओपन सोर्स फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि जी हर चीज़ ओपन सोर्स पे आ जानी चाहिए और हमें कोई भी और टूल यूज़ नहीं करना चाहिए। यूजुअली इट हैपेंस व्हेनेवर दिस डिस्कशन स्टार्ट्स, तो वो स्टार्ट होते ही यहाँ पे आ जाती है, अच्छा भई हम विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। I believe this is a larger debate. This is not about the one specific tool or operating system. This is a larger debate. So, yep, there are the people, ठीक है, like a lot of people जो कि open source foundation पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हैं, जो अब वो बिल्कुल ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको चाहते हैं कि जिसकी अवेयरनेस बढ़े। लेकिन जो हम अगर स्पेसिफिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें और मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, तो वहाँ जो भी एफर्ट्स हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पर हैं, ठीक है? हमारे पास कोई कल्चर बिल्ड नहीं हो रहा, हमारे पास कोई पॉलिसीज बिल्ड नहीं हो रही हैं जो कि ओपन सोर्स को सपोर्ट करें। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये हमें एक प्रॉब्लम नजर आती है, ठीक है? इन माय ओपिनियन दिस इज द प्रॉब्लम कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन द कल्चर और एट द पॉलिसी। बट हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, ठीक है? हम कैसे ये इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू कि जिससे जो है हमारे पास जो कल्चर और पॉलिसीज जो हैं वो ओपन सोर्स फ्रेंडली हों? माय गोल इज नॉट अबाउट कि जी हम एक दिन में कोई चीज़ अचीव कर लेंगे। इट मे टेक ईयर्स, ठीक है? ओपन सोर्स मूवमेंट जो आज हम दुनिया में ओपन सोर्स देख रहे हैं हर जगह, इट टुक ईयर्स एक्चुअली टू गेट एक्सेलरेशन फॉर ओपन सोर्स मूवमेंट्स, ठीक है? So yep, I understand that this cannot be done in a day or we cannot change things in the night, ठीक है? But what should be the direction we adopt so that can help our universities to adopt or to build a open source culture? Here I want to talk about कि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं उनमें और कल्चर में क्या फ़र्क होता है? सो द कल्चर में फ़र्क ये होता है कि जी आपके पास लेट्स गिव मी एन एग्जांपल, वी टॉक अबाउट टू बेस्ट एकेडमिया इन द वर्ल्ड, इज वन इज स्टैनफोर्ड, अनदर इज एमआईटी. But we look at the kind of the output generated by the MIT and Stanford. Excellent, top quality output generated और दोनों से. But if we just dig in, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि MIT is generating a lot of entrepreneurs and Stanford is generating a lot of scholars or research scholars. ठीक है, yep, their research can be converted into the companies as well. There is no doubt about it. But the kind of a culture both universities are having is different.
एक यूनिवर्सिटी के पास एक डिफरेंट कल्चर है, एक यूनिवर्सिटी के पास एक डिफरेंट कल्चर है, सो दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर हम बात करते हैं, एकेडमिया में बात करते हैं, तो हमारे पास अभी कोई ऐसा कल्चर हमें नज़र नहीं आ रहा है जो कि सपोर्ट करें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी इंडस्ट्री को, कि जी हम ओपन सोर्स डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकें। So how we can do it? So I'm actually going to introduce a paradigm. So I just feel that this is the right time to first introduce the paradigm word. So if you look at the American Heritage Dictionary, so the paradigm defined as a set of assumptions, concept, values, and practices. So it's not only about the skills. Okay, that's mean it's not only about the practice. It's not only about the concepts. It covers with the assumptions, concept, values, and practice. तो अगर हमारे जो हमारा कल्चर है वो हमारे एजम्पशन, कॉन्सेप्ट, वैल्यूज और प्रैक्टिस को कवर नहीं करता है, तो इसका मतलब है वी आर मिसिंग अ कलेक्टिव एफर्ट, वी आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स। मे बी के ओपन सोर्स फाउंडेशन की वजह से, उनकी वजह से आज maybe at the moment there are hundred of students who are learning about open source at this moment, but what about the coming thousands of students for next year? So there should be a kind of a culture कि जी अगर ये 100 students हैं, they should become a change agent, they should get a kind of environment, they should get kind of a culture जिससे वो ये 100 जो हैं वो 100,000 में convert हो सके. So this is the point जिसको मैं यहाँ पे, so I'm going to propose this open source paradigm for academia. So I was thinking about this problem, and again कि अगर हम ये सोचते हैं कि we think about how we can solve it. सो आई कम अप विद दिस पैराडाइम, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आप डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पैराडाइम ये है कि जी हम कहते हैं, मैंने कहा कि जी आपने अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको इन हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट पास इज इंट्रोड्यूस, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन वो क्या है, देन आई से यूज, इनर सोर्स, कंट्रीब्यूट और डेवलप। The more important part is inner source. I will discuss each part in detail in a few minutes. Take it to yeah. So what I believe that our university should adopt this paradigm if they want to कि जी जो ओपन सोर्स की जो अवेयरनेस है या जो उनकी यूनिवर्सिटी से जो काम हो रहा है वो उसमें ओपन सोर्स से फ़ायदा उठा सकें। आई बिलीव दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अवर यूनिवर्सिटीज़ के देखें अब वो टाइम नहीं रहा है कि जी एक जगह कोई काम हो रहा हो और किसी दूसरी जगह पे उसको पहुंचने में या पता करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आज हमारे यहाँ कोई टूल बनता है, वो इफेक्टिव टूल है, या हमारे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कोई रिसर्च भी होती है, ठीक है, इन दैट केस, तो अगर वो इफेक्टिव टूल है और लोगों की प्रॉब्लम हल कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली द पीपल विल अडॉप्ट इट, ठीक है। और अगर व्हाट अबाउट इज दैट इज एन ओपन सोर्स टूल, इफ़ अ यूनिवर्सिटी स्टार्ट एन ओपन सोर्स टूल और अगर उसकी अडॉप्टेबिलिटी हो जाती है, पूरी दुनिया से लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, सो अ यूनिवर्सिटी विल गेट समहाउ क्रेडिट फॉर दिस एज वेल, ठीक है, कि दिस टूल स्टार्टेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, दे कैन रीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय दिस वे, ठीक है, दे कैन रीच अ लॉट ऑफ मोर ऑडियंस बाय दिस वे, ठीक है। सो कम एक यूनिवर्सिटी की टेक्निकल कैपेबिलिटी भी बिल्ड होंगी, एंड थिंक अबाउट इट कि उनकी अपनी आउटरीच भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकती है। तो आई बिलीव के यूनिवर्सिटीज़ कैन टेक एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स इन अ लॉट ऑफ वे। सो सो दिस इज अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर यूनिवर्सिटी इस पैराडाइम को फॉलो करती हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा है। लेट्स डिस्कस दिस पैराडाइम वन बाय वन। So my first part is actually okay, we should work on the introduce or the introduction of open source technology. This can be, it's not necessary कि जी हर चीज़ फौरन implement हो जाएगी या आप हर चीज़ को फौरन change कर दें, but why should not we try to prefer open source technologies in our environment? If a student is not using open source technology at all, so they don't have any idea about it, why should not we use the open office? Why should not? If we are not required any specific features, we may introduce open office at the initial level as well, ठीक है। आई बिलीव कि अगर मैं एच सी करिकुलम को चूंकि हम इस पर काम करते रहते हैं, तो आई एवरी बी एस प्रोग्राम और प्रॉब्ली एवरी डिग्री प्रोग्राम एट द मोमेंट, अगर हम बी बी ए की बात करते हैं, बी एस की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो एक कोर्स है जो प्रॉब्ली आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली उसका नाम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कंटेंट में मेनली कंटेंट है कि जो स्टूडेंट्स को हम जो टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करें, उसमें साथ साथ ऑफिस ऑटोमेशन भी सिखा दें और बाकी चीज़ें भी सिखा दें। व्हाई नॉट वी थिंक अबाउट इट कि हम उन जगहों पे जो हमारे ओपन सोर्स टूल्स हैं हम उनको प्रेफर करें। बाय दिस वे यूनिवर्सिटी डोंट हैव अ बर्डन टू बाय दोज लाइसेंसेस,
ठीक है. I just like to share the one of the experiment, not the experiment, one of the thing we did at different universities. I did this thing with Habib University, and we did this thing at UIT as well, and which is the introduction of Python as a first programming language. There is a discussion about the Python first programming language honi chahiye, nahi honi chahiye. Without going into that discussion, the impact of open source by using the Python as a first programming language. पाइथन के जो बहुत सारे पैकेजेस हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, वो ओपन सोर्स हैं, एंड वो स्टूडेंट जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो जैसे ही स्टूडेंट्स ने पाइथन पे काम करना शुरू किया और हमने उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट असाइन किए, सो वी वर सरप्राइज कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे पैकेजेस खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए. बिकॉज ऑफ द ओपन सोर्स दे वर एबल टू डू इट. ठीक है, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ना लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम था, ना बाकी कोई चीज़ थी. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम उन्हें ये पाइथन में नहीं करवा रहे होते, ठीक है, सो व्हाट कुड हैपन. ठीक है, सो दे माइट miss this kind of opportunity they get using the Python. The another thing could be we can use the open source stuff like LaTeX. Okay, we can use OpenOffice. We can encourage them to actually use the Linux and etc. etc. Trust me, I would like to share one more story from my side. Okay, we are living in a pandemic. We all know about it. The school's online ho gaye, so I have a 8 years old daughter. Okay, she's in class 4 at the moment, and so I bought a laptop for him, and I installed the Linux on the laptop, and I gave her, "Chike, you have to use this laptop." And trust me, I did not have to actually teach her anything, take it specifically. She able to explore everything. She is using the LibreOffice. She is using Linux. She using the Mozilla browser. So fine, there is no such issue. So why we universities are worried about it कि जी अगर हम open source technologies पे जाएंगे तो students को problem होगी, उनको ये मसला होगा. I believe so. The reality is other side. ठीक है, शायद वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सीखने को. दिस इज़ द वन थिंग. So one thing I think the universities can take, the first step is actually to introduce open source tools, open source softwares in the labs, in syllabus, in projects. ठीक है, so this is about. ठीक है, we have to teach. जैसे अभी बात कर रहे थे बाबर साहब कि एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत एक्सपेंसिव है, विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड बट उसका जो जो उसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, वो ऑक्टेव है. ठीक है, so this, just think about it. Why should we buy that license so heavily? I know, and I can say you कि many universities are still buying that software. I know what you're talking about, जिसकी बात कर रहे थे. So yeah, that is pretty powerful, I understand. ठीक है, but for a lot of courses we don't need much power. So we can introduce the open source technologies in our curriculums, I mean in our labs, in a different way. The second step I would like to talk about, that is use. If our students are actually introduced with the open source technology, then they can go and explore कि अच्छा और क्या क्या अवेलेबल है, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं. There are a lot of AI libraries are available, tools are available. If I just able to grab a few, okay, one, the picture on above is about all open source tool available for big data. Okay, there are tools available for visualization. I have done my PhD using an open source tool for the entire PhD for visualization purpose and etc. So there are a lot of open source tools available. Okay, but our students are not aware about those tools, or they usually reach very lately because they are not introduced with the open source technology at first step. So that's why I believe the first step should be that we let them to get interact with open source technology, and then we can ask them, okay, there are the number of tools available. You people should use these tools in your projects and assignment. We can design the project this way. We can design the assignment this way, and that can be beneficial for the faculty as well. That can be beneficial for the university and the student as well. So this could be in my opinion, this should be the next step for this paradigm. The another and very important step, I believe so, is inner source. What does actually mean by the inner source? By mean of inner source कि okay, maybe we think about कि जी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं जिसको पूरी दुनिया यूज कैसे करेगी, उसको लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे उस पर जाएंगे, कैसे लोग हमें, that could be okay जी, it will take time और ये इतना आसान नहीं है. But what about कि हम अपने ही प्रोजेक्ट्स को, एक यूनिवर्सिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर ही ओपन सोर्स कल्चर इंट्रोड्यूस कर दे.
ओके वट एवर द प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग वी विल होस्ट समवेयर, ठीक है, स्टैंड ऑफ कि हर बंदा अपने एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हो, वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ काइंड ऑफ रिपोजिटरी लाइक एन ओपन सोर्स गिटहब, या हम इसको गिटलैब की मदद से कर सकते हैं, गिट यूनिवर्सिटीज अपने गिट सर्वर खुद डिप्लॉय कर सकती हैं, तो जहाँ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हों. For example, if I am doing a project, if I am doing a research, let's say, with some students or with some people, so why not I actually host my code or my project on my university's server? So maybe someone else is also need that kind of a project, or maybe they decided, okay, this is a very good thing, but I need to modify this thing to achieve this thing, and they contribute as well. So first, in before going to the कि जी हम world में contribute करें, that's a still good thing. We can do it, no doubt about it. But what about the creating inner source culture inside the university or organization? Here, a very important, being an academician, ठीक है, for last decade, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल बहुत सारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स कराती हैं, नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस बट इन प्रॉब्ली इन एवरी डिग्री प्रोग्राम, ठीक है. हमारी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्ली वी डिड 20 अराउंड 40 प्रोजेक्ट्स वी डिड इन लास्ट ईयर, ठीक है. अब प्रॉब्ली इतने ही पिछले साल, इससे पिछले साल हुए होंगे. इफ यू टॉक अबाउट ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज, यू थिंक अबाउट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स डन एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. अगर एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 4-5 years देयर आर द हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट हैव डन इन अ यूनिवर्सिटी. वो फिर क्या होता है, वो डब्बे में बंद होते हैं और फिर फेंक दिए जाते हैं, फिर उनका कोई वाली वारिस नहीं होता है. आई अंडरस्टैंड हर फाइनल प्रोजेक्ट ना तो प्रोडक्ट में तब्दील हो सकता है ना वो, लेकिन हम उससे कोई भी फायदा नहीं उठा सकते. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर हम इनर सोर्स कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दें, इनर सोर्स कल्चर को इंट्रोड्यूस कर दें और हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी रिपोजिटरी मेंटेन्स हो रही हों, तो अगर जो बाकी लोग जो पीछे आ रहे हैं दे आर अवेयर अबाउट इट, क्या काम हो गया है, हम किस काम को लेके मजीद आगे ले जा सकते हैं, किस काम में मजीद चीज़ें कर सकते हैं. आई बिलीव सो कि जो ओपन सोर्स का फ़ायदा पूरी दुनिया ने उठाया है, वी आर एक्चुअली नॉट यूजिंग एट ऑल, ठीक है, हम उसका कोई भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं. हम उसी लीनियर ग्रोथ में ही चल रहे हैं. ओपन सोर्स ने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें प्रोवाइड की है, जस्ट थिंक अबाउट इट, लिनक्स अगर ओपन सोर्स नहीं होता, ठीक है, तो कितनी हम जो है वो लीनियर ग्रोथ में हमारे पास होता. एंड बिकॉज ऑफ द लिनक्स इज ओपन सोर्स वी हैव अ लॉट, प्रॉब्ली एवरी द सेल फोन इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स, ठीक है. सो दिस इज आइडिया. सो व्हाई नॉट दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ओपन सोर्स अपने अपने ही अंदर वो इनर सोर्स कर दें. वी डोंट से दैट ओपन सोर्स, ओके यू डोंट वांट टू गो ओपन सोर्स एट दिस स्टेज, यू वांट टू कि दी हमें भी क्वालिटी का मसला है, अगर हमने रख दिया तो वो पता नहीं क्या होगा. सो यू कैन क्रिएट योर इनर सोर्स काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन यूनिवर्सिटीज और इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स आई बिलीव, ठीक है. सो अब ये अब तक क्यों नहीं हो रहा? दिस इज नॉट समथिंग इज रॉकेट साइंस, दिस इज प्रीटी इजी, एवरीवन कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है. बट इसलिए नहीं हो रहा है कि हम पिछले 2 स्टेप्स को भूले हुए, हम इंट्रोड्यूस और यूज पे ही नहीं आ रहे, तो हम इनर सोर्स पे आएंगे. जब हम इंट्रोड्यूस और यूज में आएंगे तो फिर लोग हमें हमें स्टूडेंट्स और बाकी लोग जो हैं वो इनर सोर्स को अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे, उनको यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे. गिट एंड गिटलैब इज नॉट समथिंग न्यू, ये तो काफी अरसे से यहाँ पे एवरीवन कैन डिप्लॉय, probably some of the universities have tried it but it didn't work. So the reason is that we are missing the first 2 steps in this regard. Okay, so next we move to this about the contribute. No, I mean of a contribute is not mean by the individual efforts. By mean of a contribute is actually, so we allow, encourage people to provide them opportunity, our students or something, so they can become part of actually the projects, जो worldwide projects हैं वो उनका part बने, उनको contribute करें. One of the example is Google Summer of Code. जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारा कोई स्टूडेंट है, वो कोई भी हम उन्हें कोर्स प्रोजेक्ट देते हैं, एंड वी जस्ट आस्क देम कि योर कोर्स प्रोजेक्ट इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन दिस टूल, ठीक है, ये ओपन सोर्स अवेलेबल है, इस टूल में आपने ये फीचर ऐड करना है, तो अगर आप ये फीचर ऐड कर देंगे सो यू दैट विल बी काउंटेड एज योर प्रोजेक्ट. एंड दिस एक्चुअली विल नॉट गिव एक्चुअल लर्निंग, ठीक है, उससे वो बच्चा एक्चुअली वो सीखेगा जो सॉफ्टवेयर में हो रहा है, जो मार्केट में या इंडस्ट्री में जो से एक्सपेक्ट कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ उसको एक प्रेजेंस भी मिलेगी. अगर उसका कोड जो है मर्ज हो जाता है और वो पार्ट बन जाता है, सो दैट बिकम काइंड ऑफ, उसको एक एक्सपोजर मिलेगा, एक प्रेजेंस मिलेगी कि जी मैंने इस कोड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, मैंने इस कोड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है. So this is still, I believe so. Okay, if we are able to achieve the inner source,
then we can encourage people to go now look कि तुम्हें पता है कि भाई देखो कैसे यहीं पे जैसे तुम मर्ज करते थे वैसे ही तुम्हें करना है, यहाँ पे जैसे तुमने कमिट किया था वैसे ही करना है। अब आपने उसके लिए प्लेन बिल्ड कर दिया, अब उसके अंदर से आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे। अगर इनर सोर्स अचीव हो गई है तो नाउ द स्टूडेंट शुड हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी अब इसको वो मजीद आगे लेके जा सकते हैं। आई जस्ट लाइक टू शेयर कि यूजुअली फील होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू एड्रेस द स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हो कि जी किसी सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करना तो हमें बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या हम बहुत ही 30 मार्क हाँ होंगे तो ही हम सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। I think that's not necessary at all. ठीक है, and I share my story. The necessary thing is you should be using the open source tools. अगर आप ओपन सोर्स टूल यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है, फिर आप उसमें ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेंगे। सो माय स्टोरी इज समथिंग आई वाज यूजिंग गूगल स्कॉलर की एक रैपर लाइब्रेरी थी, स्कॉलरी के नाम से अवेलेबल ओपन सोर्स। आई वाज यूजिंग फॉर सम रिसर्च पर्पस एंड आई केम टू नो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है कि यार ये लाइब्रेरी जो है ये चीज़ रिजल्ट सही नहीं दे रही है और ये रिजल्ट सही दे रही है, समथिंग लाइक दिस प्रॉब्लम। सो आई डिग इनटू दिस, आई जस्ट फॉर्क द कोड। ठीक है, मैंने पूरा कोड ले लिया वहां से, ओपन सोर्स था, अवेलेबल था। आई गेट इनटू दिस, आई फिक्स दैट थिंग। ठीक है, मैंने अपने तौर पे इसे फिक्स किया और मैंने उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, तो मेरा प्रॉब्लम भी हल हो गया, मेरा काम रुक नहीं गया वहाँ पे। एंड आई जस्ट गो एंड एक्चुअली कॉन्टेक्ट द ऑथर एंड मैंने उनसे शेयर किया कि देखें ये मैंने ये काम, ये आपकी लाइब्रेरी में ये प्रॉब्लम था, मैंने इसको सही कर दिया। एंड दे एक्चुअली इंक्लूडेड माई सोल्यूशन इन द एक्चुअल कोड। ठीक है, and they mentioned me as one of the author. I did not actually follow the जो जैसे कहना चाहिए path, ठीक है, but they mentioned, I really feel good about it. So what I learned कि जी contribute करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा 30 मार्क नहीं होना चाहिए। आप अगर ओपन सोर्स टूल्स यूज कर रहे हैं, आप उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व करें और उसको फिर कंट्रीब्यूट कर दें। सो बाय दिस वे यू कैन गेट अ प्रेजेंस एज वेल। So this is the idea. The last step I would like to say is about the framework. Sorry, is about the develop. If we get this stage, then we can think about it. कि अच्छा, why not we build this kind of tool? Why not ये जो 4 open source tool पड़े हुए हैं, हम इनको integrate करके अपना एक tool बना लें? Why not we do this thing and that thing? ठीक है, so then we will be ठीक है. I'm sure कि if a university or an organization is following these steps, so वो by that time ठीक है, they will be developing a lot of things which will be used by a lot of people. ठीक है, but here we need to think about it not कि what about the collaboration inside the academia as well. ठीक है, what about कि different universities try to build something with the collaboration. We are, if we talk about, let's say talk about student information system solution. ठीक है, अगर हमें student information system चाहिए, the world best system is by PeopleSoft. ठीक है, we don't have any other than best than PeopleSoft ERP जो है हमारे पास। Why not we our हमारी तमाम अकेडमियाँ मिलके एक solution बना रहे हैं। I remember I just forget the name. There is a project which is name, if I remember, I don't remember, but there is a consortium of universities in US which they actually build a consortium जहाँ पे वो डिफरेंट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और रिसर्च ग्रांट के जो सॉफ्टवेयर इन्होंने ओपन सोर्स आपस में कंसोर्शियम के जरिए बनाया। सो दिस दैट कुड बी द स्टेप वी कैन अचीव एज वेल। ठीक है, बट एज आई सेड अर्लियर कि हम ये क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो नीचे की जो लेयर्स हैं हम उन पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इंट्रोड्यूस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम यूज पे काम नहीं कर रहे हैं। इनर सोर्स का तो अभी तक कॉन्सेप्ट ही मुझे कहीं नजर नहीं आया एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हमें नजर आ रही। Now I would like to link actually why CS Clinic is important here. So when we started the CS Clinic, we started the open source lab under the CS Clinic as well. ठीक है, so हमने CS Clinic के अंदर एक open source lab group भी बनाया. So these people have started working on different open source project. Not only the open source project, but the project whatever we are building, we also make them open source. We started around 2 years back this stuff, ठीक है, and if you look at this ठीक उसका impact क्या आता है, so देखें तो culture जो है वो impact उसका तमाम चारों तरफ होगा। ठीक है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या एक ही जगह पे उसका impact जरूरी नहीं है। UIT at the moment is actually part of MERL, UIT MERL lab जो Microelectronic Accelerator Research Lab जो है, this is the part of the actually world consortium as well. So the MERL lab is actually working on RISC-V open source architecture. So now you see जब आप एक जगह का एफर्ट करते हैं तो उसकी जो है इम्पैक्ट जो है वो फिर आपको फैलता हुआ नजर आता है। So the efforts we started around 2 years back, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमें अब नजर आ रहा है कि जी now the students are free, they have confidence, ठीक है, the faculty feel confidence, there is a word in here
okay, open source can be done, the people are doing, students are doing open source, ठीक है, we have a capability, and that leads to this efforts, ठीक है. So कि एक international level पे जो है, we are working on open source software and this kind of stuff. Merlab is headed by Dr. Ali, ठीक है. So it's not headed by me, he's looking at this stuff, but this is what I see, this is the kind of the result we can get by actually promoting open source structure. So I hope I can give you a kind of solution, or probably a possible solution, one of the potential solution the universities or the organization should adopt to promote the open source culture in Pakistan. Thank you. That's from my, if डॉक्टर there साहब, are any थैंक यू वेरी questions. मच। मैं बस 2-3 मिनट लूँगा, इन बातों के साथ मैं कुछ रिलेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो Sure. डॉक्टर साहब, आपका जो आइडिया है, जिसके ऊपर आपने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनल गिटहब होना चाहिए। आई लाइक दैट आइडिया। बाय द वे ये कुछ 7 साल पुरानी बात है कि एक यूनिवर्सिटी में एचईसी के रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने एग्जैक्टली सेम आइडिया हमने बात की थी। अच्छा, रिगार्डिंग द गिटलैब स्टफ, गिटलैब की ट्रेनिंग्स मैंने कुछ बना के रखी हुई हैं, इसी चैनल पे मौजूद हैं। हाउ टू इंस्टॉल गिटलैब, हाउ टू मैनेज योर रिपॉजिटरीज, हाउ टू मैनेज योर प्रोजेक्ट्स, ये कोड पूरा मैनेज करना यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से यूट्यूब का चैनल है हमारा, उस पे देख सकते हैं। ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम ये वेरी कर रहे नाइस। हैं। जैसे बाबा साहब, वो मैंने कहा ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वो चूंकि हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, वो जो पीछे का जो हमारे जो स्टेप्स है ना, कि जब स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, जब उन्हें अपने आसपास नजर आ रहा होगा कि अभी आप एक नॉर्मल आप ईयर में देखेंगे तो ओपन सोर्स सम टाइम कंसिडर्ड एज अ सेकंड ग्रेडेड. Now the environment is pretty changed, but if we go back 5-10 years back, ठीक है, so open source also considered कि अच्छा open source है तो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, अब मैं ऐड बिल्कुल ऐसा करूँगा। नहीं है. हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल. मैं ऐड करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो लोग समझते हैं कि ओपन सोर्स के अंदर हमें जॉब्स क्या मिलेंगी, मैं उनके लिए 2 मिनट लूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त मल्टीपल एसटीपीज बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। आप किसी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जाएं तो आपको ये नजर आएगा कि वहां पे वही कंपनी बैठी है जो पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल किसी कंपनी को सर्विसेज दे रही है। यानी वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बट एज अ कंपनी, नॉट ऐसा एज कर. अ इंडिविजुअल। क्योंकि जो उनका फाउंडर है, ये जो उसको चलाने वाला है, वो यकीनन वही बंदा होगा जिसने एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट किया होगा, लाइक हिशाम सर्वर, लाइक माई सेल्फ, कि एक एक बंदे ने एक एक काम शुरू किया, फिर उसके बाद वो ग्रो करते गए। तो जो लोग देख रहे हैं हमें, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, इफ यू फील दैट मेरा क्या लेना देना ओपन सोर्स से, तो भाई एक चीज क्लियर, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि मेरे जैसे लोगों को, वो कंपनी चला रहे हैं हम, जो हमें हर साल लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, हमें सिखाना पड़ता है। ये जो एसटीपीज भरे पड़े हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, और जिस तरह उस्मान साहब ने, एमडीपीएससीबी ने चंद दिन पहले कहा था कि हम 40 से ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने जा रहे हैं छोटे शहरों में। छोटे शहर का मतलब वो शहर नहीं छोटे, उसका मतलब ये है कि उनके ऊपर इंडस्ट्रीज और इस तरह की रसाई कम है। तो वो लोग जो समझते हैं कि जी हम किसी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं कर सकते, या किसी ऐसे सिटी में मौजूद नहीं जहां पे बहुत ज्यादा रेल पेल है नौकरियों की, तो भाई आपके लिए एक ही चीज रह गई है, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिल्कुल वर्क। बिल्कुल बिल्कुल. क्लियरली मैसेज है ये, हिशाम ऐसे ही है ना। I agree. और यू रियली वांट टू मेक मनी, गो फॉर ओपन सोर्स स्टफ। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी स्लाइड्स में चीजें बताई। गिट लैब इज द फर्स्ट स्टेप। गिट के ऊपर जाएं, गिट से छोटा मोटा काम सीखें, एंड बिलीव मी, जो ये समझता है कि गिट इज डिफिकल्ट, यू नीड टू हैव 4 to 5 hours टू लर्न दैट टूल, Exactly, नॉट मोर देन exactly. दैट। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल. 4 से 5 घंटे लगते हैं, क्योंकि गिट जो है सिर्फ 4 कमांडों का, 5 कमांडों का मजबूआ है, और सिर्फ आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी पड़ती है जिसको हम ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, कि ब्रांचेस कैसे बिल्कुल. मैनेज करते Exactly, हैं। और that's what we need to do. I agree with you. And actually, in the context of the academia, this is what academia need to do. Ke, what I did actually, what we did at UIT, we just organized a Git workshop in just 1 hour. ठीक है कि 1 hour की workshop है. We asked them to bring their laptops. वो लैपटॉप लेके आए, उसके बाद वो निकलते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह रहे थे जो आपने कहा कि सर ये बस इतना ही था, इसके अलावा इसमें हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही है ठीक है. डॉक्टर तो यही साहब। है. So this is what we need to do. हमने जी सीआईसीडी सर. की पाइपलाइन सेटअप करना भी पूरी वीडियो ट्रेनिंग बना के रखी है। हिशाम वेरी भाई, नाइस. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि इनकरेज आवर स्टूडेंट्स, वो सीआईसीडी की जो पाइपलाइन है, अगर वो आप सीखें
तो आप $500 से $1000 की एक जॉब कर सकते हैं। तो दैट जॉब विल बी 1 वीक जॉब। 1 वीक में आप $1000 कमा सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल ब्लफ बात नहीं कर रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ। हम जब कंपनीज के पास जाते हैं, मेरी कंपनी जाती है, मैं खुद जाता हूँ, वी चार्ज अलॉट देम। हमें बहुत पैसे मिलते हैं उस काम के, क्योंकि ये लोगों को आता ही नहीं है। और हम यूज क्या करते हैं, हम सिर्फ ओपन सोर्स टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हम Amazon वेब सर्विसेज का क्लाउड होगा, माइक्रोसॉफ्ट एजर होगा, डिजिटल ओशियन होगा, गूगल क्लाउड होगा, ये ओपन स्टैक होगा, वो आखिर में लगाते हैं डिप्लॉयमेंट में। उससे पहले सॉफ्टवेयर का पूरा एक पाइपलाइन बिल्ड करते हैं कि आपका डेवलपर यहाँ से कोड को जस्ट कमिट करे, और उसके अगला काम क्या है, उसका टेस्टिंग हो कोड की। उसके बाद टेस्टिंग के बाद वो अगर टेस्ट में कोई मसला है तो वहीं से एरर आ जाए। जो कि पहले ये होता था कि हर बंदा अपने हाथ से टेस्ट कर रहा होता था। टेस्ट के बाद जी वो कहता है जी रिलीज करना है, हमने रिलीज करना है। रिलीज से पहले वो स्टेजिंग रिलीज हो रहा है, फिर उसके बाद मास्टर रिलीज हो रहा है। हमारा CI/CD की पाइपलाइन का इतना जबरदस्त काम है कि बिल्कुल आसानी से आप एक कमिट करते हैं, और आपका जो क्लस्टर है जिसके ऊपर आपका क्यूबरनेटिस चल रहा है, जिसके ऊपर आपका ओपन स्टैक चल रहा है, आपका Amazon वेब सर्विसेज चल रहा है, आपका गूगल क्लाउड चल रहा है, आपका डिजिटल ओशियन चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर चल रहा है, यहां से गूगल इस कमिट किया कोडर ने और वहां डिप्लॉय हो जाता है। ये है I think ऑटोमेशन। this could be a good point to initiate some kind of things like the kind of the videos and the lectures you have prepared. ठीक है, I must say कि like जिस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ forums build हुए हैं, तो Open Source Foundation Pakistan should also build a kind of a chapter in each every university. So by this way, मैं these videos and lectures can be convey and उन्हें पहुंचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, मैं उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 4 साल पहले आया था, सलीम रफीक साहब के साथ, ताहिर चौधरी साहब के साथ, और डॉक्टर जहीर से और प्रकाश साहब से बहुत लंबी चली गपशप हुई उनके साथ, तो खैर IEEE के हवाले से। सो ये ट्रेनिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आई विल शेयर दीज थिंग विद यू इंशाल्लाह। हमारा एक पोर्टल है opensourceeducation.net, अगर आप जस्ट नोट कर लें opensourceeducation.net, वहां पे ये ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं। आपके स्टूडेंट्स को देख के क्यूबरनेटीज, गूगल क्लाउड की चीजें, Amazon वेब सर्विसेज की चीजें, डॉकर कंटेनर, लिनक्स उर्दू में, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गिटहब, गिटलैब, ये सारा कुछ वहां पे पड़ा हुआ है। दे कैन लर्न। तो जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाई सीखना सीखो से एजुकेशन लो, अपना स्किल बढ़ाओ, उस स्किल को आगे लेके जाओ। और हमारी ख्वाहिश है कि हम सारे मिलके बेहतर पाकिस्तान के लिए काम करें और अच्छे पैसे कमा के लाएं घर में। आपके घर में पैसे आएंगे अच्छे तो पाकिस्तान में आएंगे, यही गोल है सारी।